Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone, welcome back to We Learn English Easily. So as you know, in our previous video we have talked about perfect tenses, present perfect and past perfect. Okay, we did some exercises also related to this chapter. Okay, and in our today's video we are going to do the remaining exercise. Okay, but first of all, let's have a quick recap about present perfect tense and past perfect tense. Okay, present perfect टेंस. ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम इसमें? हैज और हैव. मेन वर्ब हम इसमें यूज करते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म, या फिर आप इसे कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ओके, अब हैज का यूज कहाँ करना है और हैव का यूज कहाँ करना है, बात ये आती है. हैज का यूज हमें करना है सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट के साथ, और हैव का यूज हमें करना है प्लूरल के साथ. इट मीन्स आई, वी, यू एंड दे. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करने वाले हैं? हैड. Whether the subject is singular or plural, we will use only had. Okay. Main verb की जहाँ बात आती है, so wherever you'll find perfect, it means you'll have to use verb third form. Wherever you'll find continuous, it means you'll have to use verb fifth form. Okay. So main verb will be verb third form, or you can say past participle. The arrangement of the sentence will be subject plus helping verb had plus main verb third form plus object. Okay, now we are going to do some exercises. Okay, okay students, what is your next exercise? You are a Martian. It means आप मंगल ग्रह के हैं. You have received an emergency call from humans to rescue them. आपको एक इमरजेंसी कॉल आया है ह्यूमंस की तरफ से कि आपको उनको बचाना है. You record what you see when you arrive. आपने वहां आपको रिकॉर्ड करना है कि आपने वहां पहुंचकर क्या देखा. On your return, you write the report in the past perfect tense. और आप जब वापस लौटते हैं तो आपने एक रिपोर्ट लिखनी है पास्ट परफेक्ट टेंस में. ओके, सो राइट द रिपोर्ट. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज As we arrive on earth. जैसे ही हम अर्थ पर पहुंचते हैं. So you'll have to write it in past perfect. It means you'll have to use had plus verb third form. Okay. So I'll write it as we had arrived on the earth. Okay. As we had arrived on earth. Okay, what is next? We see human beings destroying their planet. हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स अपने प्लेनेट को खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सो वी विल राइट इट. वी सॉ, हमने देखा ह्यूमन बींग्स हैड डिस्ट्रॉयड their planet. What is next? They are digging up the earth. वो धरती को खोद रहे थे. And are extracting all oil and minerals. और सभी ऑयल और मिनरल को ले रहे थे. So we will write they had dug the earth and extracted all oil and minerals. Okay, what is next? In the process, they are not only polluting the air but also destroying forest. और इस प्रोसेस में ना केवल वो हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, जंगलों को भी खत्म कर रहे हैं. ओके, वी विल राइट इट सेम. इन द
process they had not only polluted the air but also destroying forest. Also destroying मतलब खत्म कर रहे हैं, और and we will change it into past perfect, so this will be but also destroyed forests. Okay, what is next? As a result, their land has become barren and no food has grown on it for years. और रिजल्ट के तौर पर क्या होता है? Their land has become barren. Barren it means बंजर हो गया है. And no food has grown on it for years. और कई सालों से इस पर कोई भोजन नहीं उगा है. So we will change it into past perfect. So this will be as a result, their land had and no food had grown on it for years. Okay, what is next? The weather patterns are changing. Weather pattern भी change हो रहे हैं. So this will be the weather patterns had changed. Okay. The rainy season is shortening and many areas are becoming totally dry. जो बारिश का मौसम है वो कम हो रहा है और बहुत ही ज्यादा जो हिस्से हैं धरती के वो सूख गए हैं. This will be the rainy season had shortened and many areas had become totally dry. Okay, so let me tell you the Hindi meaning of this. This paragraph is giving a very important message to us. क्या मैसेज देना चाह रहा है ये पैराग्राफ हमें? Let me tell you. पैराग्राफ में बताया गया है कि आप एक मार्शियन हैं, आप मंगल ग्रह के हैं और किसी ह्यूमन बीइंग ने आपको कॉल किया है ये बताने के लिए कि हम मर रहे हैं, प्लीज कम एंड सेव अस, आओ और हमें बचा लो. तो मंगल ग्रह का एक व्यक्ति वहां जाता है जमीन पर या धरती पर और वहां देखता है कि क्या क्या होता है और उस सम को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है. ओके, अभी ये समय चल रहा है. कौन सा समय चल रहा है? जो हमें बुक में क्वेश्चन के तौर पर दिया गया है और हमने ये लिखा है जो आगे भविष्य में होने वाला है. ठीक है, सेंटेंस में हमारे क्वेश्चन में है वी सी ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग देयर प्लेनेट. हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं. एंड वी ऑल आर डूइंग सो, और हम सब ऐसा कर भी रहे हैं. वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, हम पेड़ों को काट रहे हैं. बहुत सारे व्हीकल्स यूज करते हैं जिसकी वजह से जो स्मोक उसमें से आता है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है. बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जिनके चिमनी में से जो स्मोक निकलता है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है. ओके, इन सभी कारणों से प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है और ये है हमारा फ्यूचर जो हमने चेंज किया है. हमने खुद चेंज किया है, हमने तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है और हम ही वो लोग हैं जो खुद अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने वाले हैं. ओके, और हमने कैसे अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया है चलिए देखते हैं. एज वी हैड अराइव्ड ऑन अर्थ, जैसे ही हम धरती पर पहुंचते हैं, ये मंगल ग्रह के लोग कह रहे हैं, वी सो हमने देखा ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉयड, ह्यूमन बीइंग्स हैड डिस्ट्रॉयड देयर प्लेनेट. ह्यूमन बीइंग्स ने अपना प्लेनेट पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है. दे हैड डग द अर्थ, और उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला है. एंड एक्सट्रैक्टेड ऑल ऑयल एंड मिनरल्स,
और धरती में से जितना भी तेल और मिनरल्स थे सब ले लिए हैं। इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में दे हैड नॉट ओनली पोल्यूटेड द एयर, उन्होंने न केवल वायु को प्रदूषित किया है बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जंगलों को भी बर्बाद कर दिया है। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट के तौर पर क्या होता है, देयर लैंड हैड बैरन्ड, उनकी जमीन बंजर हो चुकी थी। एंड नो फूड हैड ग्रोन ऑन इट फॉर ईयर्स, और सालों से उसके ऊपर कोई भोजन नहीं उगा है। द वेदर पैटर्न्स हैड चेंज्ड, जो मौसम है वो पूरे तरीके से बदल चुका है। मतलब जो मौसम का पैटर्न है कि किस तरीके से गर्मियां होनी है, सर्दियां होनी है, बरसात होनी है, वो पूरे तरीके से बदल चुका है। द रेनी सीजन हैड शॉर्टेंड, बारिश का जो समय है वो बहुत ही कम हो चुका है। एंड मेनी एरियाज हैड बिकम टोटली ड्राई, और जमीन के जो कई इलाके हैं वो पूरे तरीके से सूख चुके थे। ओके, दिस इज आवर फ्यूचर, वी कैन मेक इट लाइक, ऐसा हो भी सकता है। अगर आज हम थोड़े स्टेप्स नहीं लेते हैं, अगर आज हम अपनी अर्थ को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यही होने वाला है फ्यूचर। एवरीथिंग इज ऑन यू, सब कुछ आपके ऊपर है। हाउ यू वांट योर अर्थ, आप अपनी अर्थ को कैसे चाहते हैं। ओके, बट वी विल राइट सम मोर लाइन्स अबाउट दिस पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ रेन द रिवर्स आर ड्राइंग अप, बारिश की कमी की वजह से नदियां सूख रही हैं। ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ रेन rivers had dried up। ओके, क्योंकि हमें सेंटेंसेस को किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। व्हाट इज नेक्स्ट, द राइजिंग हीट इज मेल्टिंग द आइस कैप्स एंड द सी लेवल इज राइजिंग। द राइजिंग हीट, इट मीन्स जो सूरज की गर्मी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है, और सी लेवल जो है वो बहुत ही ऊंचा हो रहा है। बट विल हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट, सो वी विल राइट इट, द राइजिंग हीट had melted the ice caps and the sea level had risen. Okay, what is next? Many islands are nearly disappearing because of floods. Many islands had nearly disappeared because of floods. Let me tell you the Hindi meaning. Due to lack of rain, बारिश की कमी की वजह से नदियां सूख चुकी थी। The rising heat had melted the ice caps, जो बढ़ती हुई सूरज की गर्मी है उसने ग्लेशियर पिघला दिए थे। And the sea level had risen, और समुद्र तल बहुत ही ऊंचा हो चुका था। Many islands had nearly disappeared because of floods, और बाढ़ की वजह से बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो लगभग गायब हो चुके थे। ओके, सो इट कैन बी आवर फ्यूचर, हमारे हाथों में है सब कुछ। वी नीड टू डू समथिंग, हमें कुछ करने की जरूरत है। और हम क्या कर सकते हैं, हम व्हीकल्स का कम से कम यूज कर सकते हैं, और साथ ही में मीन्स अगर हमें थोड़ी दूर पर कहीं जाना है, सो वी कैन यूज आवर बाइसिकल। ओके, अब दिवाली भी आने वाली है, सो वी कैन सेलिब्रेट अ इको फ्रेंडली दिवाली। हम एक इको फ्रेंडली दिवाली मना सकते हैं। नो क्रैकर्स, नो लाउड साउंड। ओके, ब्यूटीफुली हम रंगोली बना सकते हैं, एक दूसरे को विश कर सकते हैं, एंड स्वीट्स खा सकते हैं। ओके, बहुत सारे हम ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। ओके, इस दिवाली पर हम एक खास क्या काम कर सकते हैं, हम ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट दिवाली पर ये कितना बड़ा होता है, उसके बाद नेक्स्ट दिवाली पर ये कितना बड़ा होता है। बिकॉज ट्रीज आर द ओनली ट्रू फ्रेंड्स ऑफ अस, क्योंकि केवल ट्री ही हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं जो ऐसी सिचुएशन आने से बचा सकते हैं। ओके,